بالآخر عمران خان نیازی صاحب کی بہنیں بھی رہا اور کس نئی کھیل کی ابتدا ہو سکتی ہے اور پنکی پیرنی ان ایکشن اور پولیس کی پریزنر وین کے اوپر حملہ اور پی ٹی اے کے متعدد رہنما فرار اور شباز گل قومی یوتھ کو چونا لگانے کے لیے کیا نیا چورن لے کر آیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فل کورٹ ریفرنس، اور فواد چودھری صاحب کے بھائی کو عمران خان نیازی صاحب کی لیگل ٹیم سے فارغ کر دیا گیا۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں شباز گل کا ہی ذکر کرتا ہوں کہ اوورسیز جو پی ٹی اے کے جو سو کالڈ جو رہنما بیٹھے ہوئے جو کوئی امریکہ میں، یعنی کہ امریکہ نارتھ امریکہ کا اینڈ سنبھالا ہوا ہے اس نے شباز گل نے، اور جس طرح یہ یورپ کے اندر جو ہے نا یہ زلفی بخاری ہے، تو شباز گل نے امریکہ کے اندر بھی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ نیا فارمولا کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے نا وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اور عمران خان نیازی صاحب کے یہ فالوورز اتنے کلٹ ہیں کہ وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ تو وہ جناب دھڑا دھڑ ڈونیشن اور پیسے اور اس طرح کی ان کو فنڈنگ کرتے رہتے ہیں، ان کا چولہا چوکڑی بھی چلتا رہتا ہے اور ان کے بینک بیلنس کے میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی جو حالیہ واردات ڈالی ہے، کیونکہ ان کے اندر آپس کے اندر بھی جو ہے نا یہ مقابلہ چل رہا ہے، کیونکہ چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا زلفی بخاری نے بولا تھا کہ چانسلر کا جو ہم نے الیکشن عمران خان نیازی صاحب نے کنٹیسٹ کرنا تھا اس کے اندر ان کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ نہیں ہوئے، تو میں ایک اور جو ہے نا وہ میں لے کر آ رہا ہوں پلان، اور عمران خان نیازی صاحب کو اپروچ کرنے کے لیے غالباً انہوں نے شہروں کے نام میں یہ بولا بھی ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ آگے جو ہے نا وہ ان کو انگیج کریں گے تاکہ وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر کے عمران خان نیازی صاحب کو رہا کروائیں۔ تو شباز گل صاحب نے جناب واردات ڈالی ہے ناروے کے اندر، تو ناروے کے اندر ایک جناب انہوں نے جس طرح جناب جو ہے نا اس کو پہلے ہائپ کریٹ کی کہ میں ناروے جا رہا ہوں اور خوشخبری آپ کے لیے جو آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو خیر وہ ناروے میں گئے۔ ناروے میں ایک پارٹی ہے سینٹرم پارٹی، ٹھیک ہے، وہ نارویجن نام تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ مختلف ہوگا اسپیلنگ وغیرہ کے اندر، تو اس کے جناب جو سربراہ ہیں جو اس کے چیئرمین ہیں، تو وہ چیئرمین ہیں لائر بھی ہیں، اور وہ صرف ان کی اوقات ان کی حیثیت اتنی ہے کہ آسلو میں وہ کسی اور پارٹی میں ہوتے تھے اس وقت، تو وہ ایک بار کونسلر منتخب ہوئے، پھر انہوں نے جناب جو ہے نا یہ کچھ یعنی کہ جس طرح عمران خان نیازی صاحب کا طرز سیاست ہے اسی طرح ان کا بھی طرز سیاست، گورنمنٹ کی چینج اور یہ وہ 2021 کے الیکشن کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور صرف ان کو 0.3% ان کو ووٹ ملے، اور ساتھ جو ان کا ہے کہ یہ جناب یہ ہیومن رائٹس والے ہیں، کسانوں کی ہے، اور ایل جی بی ٹی یعنی کہ جمہوریت صحیح ٹائپ، اور جس طرح جہاں خان صاحبہ کہتی ہیں تو وہ اس طرح کی بھی جو ہے نا وہ ایڈوکیسی وہ کرتے ہیں۔ یورپین ممالک میں یہ خیر چیز کامن ہے، ویسٹرن ورلڈ میں، ہمارے ملکوں کے اندر اس کو جو ہے نا یہ معیوب، اور دین کے اندر بھی ان چیزوں کو حرام سمجھا جاتا ہے، ممانعت ہے۔ تو کوئی بھی پارٹی پاکستان کے اندر یہ نہ تو کسی اس طرح کی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے نہ پروموٹ کر سکتی ہے۔ تو شباز گل صاحب نے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ سائن کیا ان کے ساتھ، انہیں انوائرمنٹ اور اس طرح کے ہیومن رائٹس ایشو وغیرہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑے پائے کے وکیل ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، عمران خان نیازی صاحب کے سے وکالت نامے پر دستخط کروائیں گے، پھر عمران خان نیازی صاحب کی گرفتاری کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر وہ چیلنج کریں گے۔ تو جناب نہ نومن تیر ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اگر دستخط ہی کروانے ہیں، کیونکہ میری بھی لیگل بیک گراؤنڈ ہے عمران خان نیازی صاحب کے وکالت نامے کے اوپر، تو پاکستان کے اندر کسی بھی لائر کو کہہ کر وہ جیل کے اندر جائے اور یہ ڈاکومنٹس جناب ان کے سامنے پیش کرے اور ان کو سائن کروا کر آپ کر دیں، تو یہ بیرونی مداخلت یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور عمران خان نیازی صاحب کے لیے کون سی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ 8-10 کمروں کا توڑ کر ان کا ایک سنگل بیرک بنایا گیا، ککڑ مچھلیاں مرغی ہے وہ دیسی وہ پال رہے ہیں ادھر،
फिर उनकी मुलाकातें भी जो है ना ये मास हुआ ये अक्टूबर के ये चंद दिन ये गुजरे हैं, तकरीबन कोई 20-21 दिन, तो उनके साथ ये मुलाकात के ऊपर पाबंदी है। अदरवाइज तो उनके पूरा साल उनके साथ मुलाकातें जो है ना लोगों की होती रही हैं, इंटरव्यू भी देते रहे, उनके आर्टिकल भी छपते रहे, और क्या क्या नहीं उनके लिए होता रहा था। हालतें जिस तरह की उनकी सहूलत करती रही है, मगर एट दी एंड शहबाज गिल साहब जो है ना ये कौमी यूथ को चूना लगाकर ये फंडिंग जो है ना ये करना चाहते हैं। ये आप देख लीजिएगा कि चंद दिन के अंदर ये फंडिंग की अपील करेंगे, तो बहरहाल इनकी आनी जानी है देखिए। तो अब जनाब काजी फायज ईसा साहब की तरफ आ जाते हैं। उनका फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, तो फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर भी जो है उनके जजेस ने जो साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया। मासवाए उन 6 के टोले के जिसके सरबराह जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, जो कि उम्रे पर गए हुए, बाकी 5 भी नहीं है। आयशा मलिक और शाहद मलिक वगैरह और इस तरह के जो जजेस हैं, तो वो नहीं आए। तो वो नहीं आए, उन्होंने जनाब जो है ना अपनी रिजर्वेशन शो की, और मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त भी लिखा कि जनाब मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि काजी साहब फायज साहब ने जो है ना वो अदलिया के अंदर मदाखलत को नहीं रोका। कमाल जो हूँ जनाब, कुर्बान जाऊँ आपके ऊपर कि आप पार्लियामेंट के ऊपर मुदाखलत आप कर रहे थे, पार्लियामेंट के ऊपर हमला आप कर रहे थे। काजी फाइज ईसा साहब ने जो है ना वो आपके साथ मिलकर पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं किया, यही आपको ग्रीवियंस है, यही आपको रंज है। बहरहाल उनका बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उनके साथी जजों ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर उनको खराज तहसीन पेश किया। बार काउंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी उनको उनके जो है ना वो अशाइया दिया, जिसके अंदर वकला और बड़ी तादाद में काफ़ी लोग शरीक हुए, यानी कि एक फुल फुल प्रोटोकॉल के साथ एक पुरवकार तकरीब के जरिए एक ऐसा तरीके से उन्होंने अपने टेन्योर का उन्होंने अख्ताम किया जिसको याद रखा जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब पुलिस वैन के ऊपर हमले का। फिर मैं लीमा खानम और पिंकी बिल्किन की तरफ आता हूँ। मैं तो बाकी और फैसल की लड़ाई की तरफ भी, तो वो पुलिस की एक बयान थी, इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत से वो जनाब जो है ना वो रिमांड वगैरह लेकर जा रही थी। मुलजमान के अंदर तकरीबन 80-82 के करीब थी, 3 महीने थी पुलिस की। तो उसके ऊपर संजानी के करीब जो है ना हमला किया। तो हमले की क़्यादत वो कर रहे थे PTI की बहबूद आबादी के गालिबन वो वज़ीर हैं या मशीर हैं, तो लियाकत मलक लियाकत, तो उनके बेटे ने उनकी क़्यादत के अंदर हमला किया। और जनाब उसके अंदर जनाब ये थे यासर कुरैशी साहब और मेरा ख्याल है शायद गुलजेब मेरा ख्याल है नाम था उसका। तो वो ये 3 ये चीदा चीदा MP वगैरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ये जनाब वहाँ से फरार हुए बाकी दीगर कैदियों के साथ। मगर पुलिस ने दोबारा जो है ना नाके शाके लगाकर तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और यकीनी तौर पर जो है ना ये इनके ऊपर पर्चे भी हुए, क्योंकि उन्होंने जो पुलिस की प्रिजनर वैन है वहाँ पर उसके ऊपर हमला किया। अब PTI के अंदर लड़ाई जो है ना बड़ी अरूज के ऊपर है। एक तरफ तो जो फैसल चौधरी साहब हैं, इमरान खान नियाज़ी साहब से मिलकर आए, इमरान खान नियाज़ी साहब के वकील भी हैं, फवाद चौधरी का भाई है, तो उनको सलमान अकरम राजा जो कि PTI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने इमरान खान नियाज़ी साहब की लीगल टीम से उनको निकाल दिया। तो कोई मकबूल वजह भी उन्होंने बयान नहीं की। फवाद चौधरी उसके ऊपर जनाब अच्छा तपे, उन्होंने सलमान अकरम राजा पर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये नवाज शरीफ के पनामा वगैरह के केसेस के अंदर ये नवाज शरीफ साहब के वकील भी रहे हैं, प्रोफेशनल वकील। वैसे जो है ना वो किसी का भी वकील हो सकता है, जिस तरह ये एतजाज़ हसन साहब भी नवाज शरीफ साहब की वकालत भी करते हैं, दीगर भी, क्योंकि प्रोफेशनल वकील का पार्टी लाइन अपनी जगह पर मगर उनकी प्रैक्टिस अपनी जगह पर। तो खैर उन्होंने बोला कि इसको जो है ना सलमान अकरम राजा को पार्टी का कुछ पता नहीं है, तो जनाब इनको ये नहीं करना चाहिए, उनको जो है ना लीगल टीम से नहीं निकालना चाहिए। फवाद चौधरी का जवाब दिया जनाब फलक जवेद खान, जो कि सनम जवेद, जो कि इस वक्त राउंड के महफिल बनी हुई है, मेरा ख्याल है दोनों बहनें ही उधर हैं PK के अंदर। तो वहाँ पर ये यानी कि फुल अपना जो है ना उनका प्रोग्राम जो है ना वो जारी है। लाहौर के अंदर जब जवान पार्क में थी तो उनको कोई मुंह नहीं लगाता था। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब ये सलमान अकरम राजा साहब ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारा अपना मसला है, ये आपकी तरह ये भागे नहीं है, ये इमरान खान हैजी साहब के साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में ये आए थे, तो चलो चलो शाबाश अपना रहा लो, और ये हमारी पार्टी का मसला है। क्योंकि फवाद चौधरी तो पार्टी से
अलहदा हो गए थे, अब दोबारा इन होने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका रास्ता नहीं है। तो फवाद चौधरी की जो है ना वो बेगम हिबा चौधरी साहबा, उन्होंने फलक का जवाब दिया कि तुम मफरूर औरत हो, तुम्हें क्या पता, जुमा जुमा 8 दिन हो गए तुम्हें पार्टी के अंदर आए हुए, एफआईए के अंदर जाओ, जाकर वहां पर पेश हो, तुम मफरूरी काट रही हो तो तुम्हें क्या, तुम मफरूर औरत का उन्होंने वो हैश टैग वगैरह भी बनाकर उनको दिया, यानी कि ये लड़ाई अब जो असल और बड़ी जो बड़ी लड़ाई है वो जनाब शुरू होने वाली है इमरान खान याजी साहब की हमशीरा और पिंकी पीरनी के ऊपर, और जो पीटीआई का जो उसका पीटीआई की क्यादत के ऊपर कब्जा करना है, तो ये उनकी लड़ाई होगी। तो पिंकी पीरनी बड़ी सियानी है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत इनकी केपीके के अंदर है। बनी गाला से उठी वो सीधा जनाब केपीके के अंदर चली गई, हालांकि खुद को बड़ी मजहबी कहती है, एक नामहरम के साथ, नामहरम के, तो वहाँ पर केपीके के अंदर रह रही है, हालांकि अपनी माँ के साथ बनी गाला के अंदर या अपने बच्चों के साथ वो रह सकती थी, मगर नहीं, वो केपीके के अंदर उन्होंने जाकर जब वज़ीर आला हाउस के ऊपर भी कब्जा कर लिया, फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी वो उन्होंने अपनी फुल एंट्री मार दी, उन्होंने पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया, शिबली बुखारी, उमर यूब खान और गौहर अली खान साहब और अली मीन गंडापुर और दीगर को उन्होंने बुलाया, और बुलाकर जो है ना उन्होंने किया, और ये भी सुना जा रहा है कि उन्होंने जो है ना के पी के हाउस के अंदर, वजीर अला हाउस के अंदर तमाम आने जाने का उन्होंने बोला कि जो भी आता जाता है मुझे उसकी फरिश्ते फराम करे, यानी कि वो यहाँ पर भी किसी उस्मान बसदार को देख रहे हैं, और यहाँ पर भी कोई पिंकी, यहाँ पर भी कोई गोगी, गोगी जो है ना वो लॉन्च करना चाहती है, ताकि यहाँ की कमाई भी हो। और सुना ये भी है, बहरहाल गैर मुसद्दक़ है, मुझे तस्दीक तो नहीं है, कि उन्होंने तकर्रियाँ और तबादलों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है के पी के अंदर, कि उनके पूछे बगैर नहीं होगा, तो यानी कि कमाई का एक जरिया। और दूसरी तरफ जो है ना पीटीआई इमरान खान अजीज साहब की बहनें भी, वो भी रहा हो गई हैं, वो रहा होकर उन्होंने लाहौर का रुख किया, उनका पिंकी पीरनी से बेहतर उनका इस्तकबाल हुआ। और पिंकी पीरनी बड़ी सियानी है, क्योंकि केपीके के अंदर जो है ना इस वक्त पीटीआई की हुकूमत भी है, थोड़ी सी मजबूत भी है, पंजाब के अंदर लोग नहीं निकले, तो अलीमा खानम साहबा जो है ना वो इनकी अभी जो है ना ये इक़्तिदार की इनकी जंग होगी, बड़ी मज़ेदार जंग होगी। और जिस तरह ये घरेलू सियासत होती है ना, तो ये बड़ी देखने वाली होगी कि पार्टी के ऊपर ये किस तरह एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ मगर जो पावर पॉलिटिक्स है, जो पावर वाली गेम है, वो मेरा ख्याल है पिंकी पीरनी के हाथ में है, क्योंकि केपीके के अंदर वो जाकर बैठ गई हैं, और मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने की वहाँ पर बैठकर एक और तैयारी करे, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने 2-3 हमले किए, और बंदे गिरफ्तार करवाकर जो खुद रफू चक्कर हो जाते थे और मंजिल पर नहीं पहुंचते थे। तो मुमकिन तौर पर, क्योंकि तालिबान जो लेकर आते थे उनको दिहाड़ियाँ तो इन्होंने देनी होती हैं, तो ये जो तकर्रियाँ तबादले और बाकी जो केपीके के अंदर बैठी हैं, वहाँ से हो सकता है कमाई करके ये तालिबान को दें, और फिर तालिबान को देकर वहाँ से जो है ना अस्करियत दहशत गर्दी, दहशत गर्दों के जत्थे लेकर वो इस्लामाबाद के ऊपर जो है ना एक और हमला करें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को और हुकूमत हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, इसके ऊपर जो है ना ये कड़ी नज़र रखनी चाहिए पिंकी बिरनी की एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि जितनी भी शर्पसंदी होती थी इमरान खान अजीज साहब की, यानी कि वो डिफेक्टो एक तो वजीर आजम भी थी, और डिफेक्टो जो है ना वो सी एम भी थी, खसूसी तौर पर पंजाब की। तो वहाँ पर जो उन्होंने वारदातें डाली हैं, जो अन्नी डाली है उन्होंने, तो खुदा अपना, और बाकी जो ये जिस तरह ये कहते हैं घरेलू खत्म, मगर कैसे कि जनाब अरसलान बेटा इनको वो जोड़ दो, दहशत गर्दी के साथ जोड़ दो, हमारी तरफ ना आने दो, और फिर बाकी जो इनकी जो ऑडियो टेप्स वगैरह लीक हुई हैं, तो इससे ये पता चलता है ये कितनी शातिर खातून है, कि पर्दे के अंदर रहकर वो कितनी बड़ी वारदात डाल सकती हैं। तो ये देखने वाली ये बात है कि क्या अली बिन गंडापुर, और अली बिन गंडापुर भी किसी से कम नहीं, जो इमरान खान न्याजी साहब को चूना लगा सकता है। तो मुमकिन तौर पर जो है ना ये पिंकी पीर थी, जो है ना वो इसको इनको काबू ना कर सके, या लुट के माल के ऊपर दोनों जो है ना ये हिस्सेदार बन जाए, क्योंकि उस्मान बसदार की तरह ये घुघू तो लगता नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले चंद दिन पीटीआई के अंदर मजीद ग्रुप बंदियाँ होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ग्रुप है, एक्टिव है, वो एक डिसेंसी की पॉलिटिक्स करना करेंगे, पिंकी पीरनी भी अपनी सियासत करेंगी, लीमा खानम भी है जो है ना वो इमरान खान साहब की तर्ज के ऊपर कन्फ्रंटेशन की सियासत करेंगे। बहरहाल ये इनको ये पीटीआई की सियासत के हवाले से ये आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।